Hello, dear students. How are you? Welcome to lecture number 6 of chapter matrices. In lecture number 5, we have started the syllabus of 12th standard and in which we have studied the elementary transformations. We have studied there are total 6 elementary transformations, 3 based on row and 3 based on column. Means there are 3 elementary row transformations and 3 elementary column transformations. We have studied 2 rules to use the elementary transformations. Rule number 1 to use the elementary row transformations and rule number 2 to use elementary column transformations. Now today we are going to study how to use the elementary transformations, or we are just try to make a practice of elementary transformations. Now question is, apply the given elementary transformations on each of the following matrices. Question number 1, matrix A is given 1, 0, minus 1, 3 and the elementary transformation is given to change R1 and R2. We'll read it as R1 interchange R2. Means just we have to interchange the elements of R1 and R2. Here given matrix is given A is equal to matrix 1 0 minus 1 3. Now performing R1 interchange R2, this A changes to the matrix. This symbol is used to make a change. We'll read it as A changes to matrix. क्या होगा R1 और R2 सॉरी R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, यानी R1 की जगह पे R2 के एलिमेंट, R2 की जगह पे R1 के एलिमेंट्स, यानी ये हो जाएगा -1 3 1 0. These are very easy questions. This is just a practice of elementary transformations. Now in question number 2, matrix B is given 1 minus 1 3 2 5 4 and we have to make an operation. R1 changes by the operation R1 minus R2. R1 के हर एक एलिमेंट से R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, यानी गिवन मैट्रिक्स है यहाँ पर B is given matrix that is 1 minus 1 3 2 5 4 and R1 changes by the operation R1 minus R2. Then we have this B becomes, or B changes to the matrix R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी R1 के हर एक एलिमेंट में से उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 minus 2 it becomes -1, -1 minus 5 it becomes -6 and 3 minus 4 it becomes -1 and this 2 5 4 as it is. This is your final answer. तो R1 minus R2 करने के बाद मैट्रिक्स B में क्या चेंज होता है, देखिए सिर्फ R1 में से R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं. 1 minus 2 that is -1, -1 minus 5 that is -6, 3 minus 4 that is -1. Got it everybody? Okay, now look at for third. In third matrix A is given 1 0 2 2 3 4 and we have to make the operation C1 changes by the operation C1 plus 2 C3, यानी कॉलम फर्स्ट में चेंज करना है हमें. तो गिवन मैट्रिक्स A है, A is matrix given that is 1 2, we'll write in columns 0 3 2 4 और ऑपरेशन करना है C1 changes by the operation C1 plus 2 C3, यानी C3 के हर एक एलिमेंट, दिस इज C3 नाउ, ये C3 है और ये C1 है, तो C3 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और C1 के एलिमेंट्स में ऐड करना है. तो दिस A changes to the matrix, A क्या हो जाता है देखिए
C3 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 2 आएगा 4, और उसको C1 में ऐड करने का है, यानी 1 प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 5। फिर C3 के दिस 4 एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 इट बिकम्स 10, and now C2 as it is, this C3 as it is, then this matrix becomes 5 0 2 10 3 4। समझ में आ रहा है आपको? चेंज किस में हुआ है? सिर्फ C1 में चेंज किया है, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन वैसा है, C1 चेंजेस बाय द ऑपरेशन C1 प्लस 2 C3, तो C2 और C3 में कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पे मैट्रिक्स ए दिया है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि C1 इंटरचेंज C2 करो, और मैट्रिक्स बी दिया है, उसमें इंस्ट्रक्शन है कि R1 इंटरचेंज R2 करो, और क्वेश्चन पूछा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये करना है। तो देखिए हम ए को चेंज करते हैं पहले। ए इज मैट्रिक्स गिवन 5 4 1 3, इसमें इंटरचेंज करते हैं C1 इंटरचेंज C3, C1 interchange C2, what do they get? This A changes to the matrix, C1 और C2 के प्लेसेस, यानी C2 को पहले लिखेंगे हम 4 3, फिर C1 को लिखेंगे दैट इज 5 1, इसको हम नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, अब जैसे A में चेंज किया वैसे ही B में चेंज करते हैं। B is given matrix, B is the matrix 3 1 4 5, R1 और R2 को इंटरचेंज करने को बोला है, R1 इंटरचेंज R2। अब ये R1 है और ये R2 है, तो मैट्रिक्स बिकम्स, इट चेंजेस टू द मैट्रिक्स 4 5, ये R2 को हमने पहले लिखा, फिर R1 को 3 1, इसको हम लिखेंगे सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करने के बाद क्या मिलता है? वी कैन से दैट बाय ऑब्जर्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय ऑब्जर्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, we can say that obtained matrices are equal. Can you observe that? Both matrices are same, means we can say that obtained matrices are equal. Matrices are equal. Okay, observe the all examples carefully. We are just doing a practice of elementary transformations. There is no use of any rule. रूल का कोई यूज नहीं है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऑपरेशन जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से वो मैट्रिक्स में क्या चेंज होता है ये देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5। गिवन मैट्रिक्स A and instruction is 2 into C2, and for matrix B it is -3 into R1, यानी मैट्रिक्स A के कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स B के कॉलम रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। और क्वेश्चन आगे दिया है कि फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस, यानी उसको चेंज करके जो मैट्रिक्स आने वाले हैं उनकी एडिशन हमें करना है। तो गिवन मैट्रिक्स A है, A is the matrix, A is given matrix that is 1 2 minus 1 0 1 3, C2 changes by the operation 2 into C2, C2 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो A बन जाएगा, A changes to the matrix, C1 as it is रहेगा 1 0, C2 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी 4 2 हो जाएगा, C3 as it is रहेगा -1 3, इसको हम कहेंगे फर्स्ट।
अब given matrix B, also B is a matrix 1 0 2 2 4 5. Now R1 changes by the operation -3R1. R1 के हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करो. ये R1 है B. R1 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो B बन जाएगा B इज इक्वल टू, B चेंजेस टू द मैट्रिक्स. इसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा -3, ये होगा 0 और ये होगा -6, ये 2 4 5. अब इन दोनों की एडिशन करने को बोला है, तो एडिशन ऑफ न्यू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ न्यू मैट्रिसेस इज, फर्स्ट में देखिए मैट्रिक्स क्या है, 1 4 -1 2 0 3 0 2 3 plus this matrix -3 0 6 -3 0 -6 2 4 5. इनके एडिशन कीजिए. दोनों की ऑर्डर सेम है इसलिए एडिशन हम कर सकते हैं. इसकी जितनी ऑर्डर है 2/3, इसकी भी उतनी ही ऑर्डर है, तो एडिशन पॉसिबल है. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, 1 में ऐड करना है -3 को, तो 1 - 3 इट बिकम्स -2. 4 + 0 is 4 and -1 + -6 is -7. 0 + 2 is 2. 2 + 4 is 6 and 3 + 5 is nothing but 8. Look at this matrix, -2 4 -7 2 6 8. This is the addition of these two matrices. Now look at question number 6. A matrix is given 1 2 -1 3 -2 5, and we are informed that to make two operations, R1 interchange R2, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, and then जो obtained मैट्रिक्स है उसके C1 में चेंज करना है. C1 चेंजेस बाय द ऑपरेशन C1 + 2 C3, यानी C3 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर C1 में ऐड कीजिए. तो देखिए गिवन मैट्रिक्स है A. A is a given matrix. This is 1 2 -1 3 -2 5. अब R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे. R1 इंटरचेंज R2. What happens? R1 और R2 को इंटरचेंज कीजिए. A changes to the matrix 3 -2 5. R2 को यहां पे लिखा और 1 2 -1 R1 को बाद में लिखा. अब इसी पे करना है हमें दूसरा ऑपरेशन. C1 को चेंज करना है. C1 चेंजेस बाय द ऑपरेशन C1 + 2 C3, यानी C3 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको C1 में ऐड करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो. तो देखिए A चेंजेस टू दिस मैट्रिक्स. A क्या बन जाएगा, C1 का एलिमेंट 3 है, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C3 का, दिस इज नथिंग बट C1 एंड दिस इज नथिंग बट C3. इसको C3 कहेंगे हम. इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 5 10 हो जाएगा. 10 इसमें ऐड करो तो 3 + 10 ये आएगा 13 C1. अब यहां पे C1 + 2 C3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा -2. -2 को इसमें ऐड करना है तो 1 - 2 यानी आएगा -1. ये -2 2 एज इट इज रहेगा और ये 5 - 1 एज इट इज रहेगा. तो आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशंस, R1 interchange R2 and C1 changes by operation C1 + 2 C3,
we have this matrix A is equal, A changes to the matrix 13 minus 2 5 minus 1 2 minus 1. Got it? तो ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चंस को, अच्छे से लिख लो इसको. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Now we'll proceed from question number 7. Look at question number 7. If A is a given matrix, the order of matrix A is 3 by 3. It has 3 rows and 3 columns. And instructions are 3 into R3 means R3 में change करना है. क्या करना है? R3 के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है. And then C3 changes by operation C3 plus 2C2. यानी C2 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके C3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करना है. तो देखते हैं क्या होगा. गिवन मैट्रिक्स इज A is a matrix 1 minus 1 3 2 1 0 and 3 3 1. R3 changes by operation 3 into R3. R3 के हर एक एलिमेंट, R3 यानी A है, R3 के हर एक एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या होगा? इज नथिंग बट A changes to the matrix 3R3 यानी it becomes 1 minus 1 3 2 1 0 और 3R3 यानी R3 को मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स 9 9 3. अब क्या बताया हमें? C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 प्लस 2C2. तो हम करेंगे C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 प्लस 2C2 यानी C2 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और C3 के हर एक एलिमेंट में उसको ऐड करो. तो ये A मैट्रिक्स बिकम्स, A चेंजेस टू द मैट्रिक्स C1 एज इट इज रहेगा 1 to 9. ये C2 भी एज इट इज रहेगा -1 1 9. अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 हो जाएगा और इसमें ऐड करना है. 3 में -2 को हम ऐड करेंगे तो यहां पे आएगा 1. इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा, इसमें ऐड करो 0 में तो ये आएगा 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 18. 18 प्लस 3 दैट इज नथिंग बट 21. समझ में आ रहा है? तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. 2 ऑपरेशन करने के बाद ए में ऐसा चेंज होता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं. ये जो मैट्रिक्स दिया है वो सेम एज दैट ऑफ ए है 3 3 1. लुक एट दिस मैट्रिक्स A 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1 और ऑपरेशन सिर्फ ये 2 ऑपरेशन रिवर्स करके दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में. पहले करना है C3 प्लस 2C2 और फिर 3R3 करना है और फिर देखना है हमें कि whether the answers from question number 7 and 8 are equal or not, or we are going to conclude the result of question number 7 and 8. Now first of all, given matrix A is a matrix 1 minus 1 3 2 1 0 and 3 3 1. Now C3 changes by operation C3 plus 2C2. What did you get? A changes to the matrix. This 1 minus 1 3. Sorry. Column 1 as it is रहेगा 1 2 3. Column 2 as it is रहेगा -1 1 3. अब C3 plus 2C2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो तो ये आएगा 1. इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो तो ये आएगा 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 और इसमें ऐड करो
तो 1 + 6 ये आएगा 7। समझ में आ रहा है आपको? C3 में चेंज किया। अब बताया है कि R3 में चेंज करो। R3 चेंजेस बाय ऑपरेशन 3 into R3, तो A चेंजेस टू द मैट्रिक्स, ये 1 - 1 1 एज इट इज रहेगा, ये 2 1 2 एज इट इज रहेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 9 9 21। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखो, इसको लिखेंगे हम फर्स्ट, इसको लिखेंगे हम सेकंड। ऑब्जर्व करो फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम एग्जाम्पल 7 and 8, फ्रॉम एग्जाम्पल 7 and 8 we conclude that both the matrices in first and second are equal after interchanging the elementary transformations. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के बाद भी आने वाला रिजल्ट कैसा होता है? सेम होता है। यहां पे पहले हमने R3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर C3 में चेंज किया था। यहां पे पहले C3 में चेंज किया, फिर R3 में चेंज किया, लेकिन दोनों का आने वाला रिजल्ट कैसा हो गया? सेम हो गया। यानी वी कैन से दैट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर कम्यूटेटिव आल्सो है। ठीक है, we'll proceed for question number 9 now. Now look at for question number 9. Use the suitable transformations on the matrix 1 2 3 4 to convert it into an upper triangular matrix. Do you know what is the upper triangular matrix? The matrix in which all elements below the diagonal are 0 is said to be upper triangular matrix. तो given matrix को हम A कहेंगे या given matrix लिखेंगे यहां पर? Given matrix is this matrix 1 2 3 4. अब इस पे जो ऑपरेशन करना है करो ऐसे कहा है, लेकिन इसको अपर ट्रायंगुलर में करना है। अपर ट्रायंगुलर यानी इसकी जो डायगोनल है ये है डायगोनल इसकी 1 4। एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0 बनाने के, यानी इस 3 को 0 बनाना। ठीक है, वी कैन यूज द रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो इजी जाता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर हम रो में देखेंगे तो 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे 1 है। तो अगर हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे एलिमेंट 3 आने वाला है, और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पे 0 आएगा। यानी हमें 3 को चेंज करना है, इसको 0 बनाना है टू मेक इट एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें R2 में चेंज करना पड़ेगा। R2 में चेंज क्या करना है? R2 में से सब्ट्रैक्ट करो 3R1, यानी R1 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0 बन जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 3 आएगा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? ये R1 तो एज इट इज रहेगा 1 2। अब ये 3 - 3 इट बिकम्स 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 into 2 इट बिकम्स 6, 4 - 6 इट बिकम्स -2, and which is upper triangular matrix, which is upper triangular matrix. समझ में आया सबको?
ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ओके, नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Convert this matrix 1 minus 1 2 3 into an identity matrix by suitable row transformations. तो इसके लिए कुछ स्टेप्स याद रखना है। एक आधा 2x2 का मैट्रिक्स है और उस 2x2 को हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो आपको इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना इजी जाता है। तो स्टेप्स याद रखिए, हमेशा हमेशा के लिए ये स्टेप्स याद रखिए। आप इसे लिखेंगे हम स्टेप्स टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स into identity matrix. तो गिवन मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे कि सपोज गिवन मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें ये 4 एलिमेंट है, कोई भी 4 एलिमेंट होने दो यहां पर, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना है, यूजिंग R2 का जो एलिमेंट्स है उसका यूज करके हम पहले यहां पे 1 बनाएंगे, बाकी 3 एलिमेंट कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? पहले क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स है, स्टेप 1 के बाद मैट्रिक्स ऐसा बनना चाहिए। स्टेप 2 के बाद यूजिंग ओनली R1 का यूज करके इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है R2 का, इसको 0 करना है। पहले ये 1 करने के बाद इसको 0 करना है, ये 2 एलिमेंट कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? पहले स्टेप में इसको 1 बनाना है, इस 1 का यूज लेके फिर इसको 0 बनाना है, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फिर स्टेप 3 में ओनली यूजिंग, यहां पे जो भी एलिमेंट है उससे इसको डायरेक्टली डिवाइड करो, यानी यूजिंग ओनली R2 मेक दिस एलिमेंट एज, ये 1 0 तो है, इसको पहले 1 करो, इसको एज इट इज रखो, ठीक है, ये जो भी है वो वैसा ही रखो। और फिर लास्ट में यूजिंग R2 ओनली, ये स्टेप 4 होगा। स्टेप 4 यूजिंग R2 का ही यूज ले लो और फिर इसको बनाओ 1 0 0 1, यानी 4 स्टेप में आपका गिवन मैट्रिक्स जो है वो क्या बनना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स बनना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये स्टेप्स आपको हमेशा याद रखना है। यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे हम यहां पे, स्टेप्स टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, रोज का यूज करके। कॉलम्स का यूज करके होगा तो स्टेप्स फिर से चेंज हो जाएगी, वो हम बाद में ये क्वेश्चंस होने के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं हम इसको कन्वर्ट यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो गिवन मैट्रिक्स क्या है, देखिए, गिवन मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स 1 - 1 2 3। एक बोनस स्टेप है अपने को, स्टेप 1, जिसमें ये फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, वो ऑलरेडी यहां पे 1 है, यानी ये स्टेप अपने को बोनस मिल गई इस एग्जांपल में। अब हम इसको यूज करके पहले इसको 0 बनाएंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 बनाएंगे, ठीक है। इसको 0 बनाने से पहले इसको 1 नहीं करना है, इसको पहले 0 बनाओ फिर आगे चलो। तो R2 को चेंज करना है, R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन, R2 - 2 R1। अब ये ऑपरेशन लिखते समय मैंने किस पे कॉन्सेंट्रेट किया, तो 2 का जो R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, उसको कॉन्सेंट्रेट किया। इसको 0 बनाने के लिए
मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो मैंने इतना ही याद रख के ये ऑपरेशन लिखा है कि R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन R2 माइनस 2 R1। तो दिस मैट्रिक्स बिकम्स, ये मैट्रिक्स क्या होगा, चेंज होगी। देखिए R1 एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1। अब ये क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा 0। अब इसको माइनस 2 या 2 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 2 हो जाएगा। 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, यानी माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2, यानी ये 2 हो जाएगा। 2 प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि देखिए R2 माइनस 2 इंटू R1, R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 माइनस 2 0, तो 0 रखा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आ गया, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। अब पहले हमें इसको 0 नहीं बनाना, इसको बनाना है। अब हमें कहा है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, यानी यहां पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं यूज करना, कॉलम्स का यूज नहीं लेना, सिर्फ रोज का यूज लेके इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को अगर हमें 1 बनाना है तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। आप में से किसी को ऐसा भी लगता होगा कि अगर हम यहां पर R2 प्लस 4R1 ऐसा अगर ऑपरेशन लेते हैं तो ये -1 है, यहां पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -4 हो जाएगा और इसमें ऐड करने के बाद ये 1 हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर हम ऐसा ऑपरेशन करते हैं तो क्या होगा, ये ऑपरेशन हमें टोटल R2 पे करना पड़ेगा। ये 0 जो हमने किया है पहले, अगर हम ऐसा ऑपरेशन यहां पे यूज करते हैं तो ये 0 तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमें ये वाला ऑपरेशन कभी भी यूज नहीं करना। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है यूजिंग ओनली R1, यहां पे लिखा है यूजिंग ओनली R2, ठीक है। यानी इसको 0 बनाते समय हमने R1 का ही यूज दिया, अब इसको 1 बनाते समय सिर्फ R2 का यूज करना है। R1 का यूज होता भी होगा तो नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो सिर्फ यूज R2 चेंजेस बाय ऑपरेशन 1/5 R2, R2 के हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, इट बिकम्स द मैट्रिक्स। ये 1 माइनस 1 एज इट इज रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0 और 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, ये हो जाएगा 1। डिवाइडिंग एवरी एलिमेंट बाय R2 बाय 5, तो ये हो जाएगा 1। अब आखिरी प्रोसेस होगी, इसको 0 बनाने के लिए सिर्फ R2 का यूज करना है, यूजिंग R2 ओनली। क्या करना है, R1 चेंजेस बाय ऑपरेशन R1 प्लस R2। अगर यहां पे 0 है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता R1 में, तो इसलिए R1 प्लस R2 करो, यहां पे -1 है, यहां पे +1 है, दोनों के एडिशन करें तो यहां पे 0 हो जाएगा। तो दिस मैट्रिक्स बिकम्स 1 0 0 1, which is the unit matrix or which is identity matrix, which is identity matrix। इसके हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको सीखने से पहले ये स्टेप्स अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 होने के बाद ये स्टेप्स हम इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलो नोट डाउन इट। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफॉर्म the matrix into upper triangular matrix by suitable column transformations. Given matrix is 3/3 matrix and we are going to convert this matrix into upper triangular matrix. Upper triangular matrix means all elements below the diagonal are 0 and here restriction is for column transformations. Restriction है कि यहाँ पे सिर्फ column transformation ही यूज करना है और इसको upper triangular matrix में convert करना है। तो देखिए गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे हम, गिवन मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स 1 - 1 2 2 1 3 and 3 2 4।
देखिए अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है, यहां पे हर सोच पे अलग ऑपरेशन बनता है, ठीक है। कोई पहले इसको जीरो करेगा, कोई पहले इसको जीरो करेगा, कोई पहले इसको जीरो करेगा, कुछ भी हो सकता है। यानी सबका आंसर सेम ही हो, सेम ही सीक्वेंस में आना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन इसके कुछ रूल्स भी है कि जब भी आपको यहां पे एलिमेंट 0 0 लाना है, तो पहले आप इस 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 डालो, तो इसको दोनों को जीरो करना अब फिर आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जीरो करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जीरो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, कॉलम सेकंड का। जो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इसका और इसका दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 है, तो इस 1 का यूज लेके हम 2 और 3 यानी C1 और C3 पे ऑपरेशन करेंगे। दो ऑपरेशन हम एट ए टाइम भी कर सकते हैं। देखिए मैं C1 पे ऑपरेशन करता हूं, टू चेंज C1 चेंजेस बाय ऑपरेशन C1 माइनस 2C2। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आने वाला है। एंड वह एक ऑपरेशन मैं C3 पे भी करता हूं, C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 माइनस 3C2। C2 को ही 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसको भी 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको 0 बना देंगे, तो क्या बनेगा मैट्रिक्स, देखिए दिस मैट्रिक्स बिकम्स, क्या चेंज होगा इसमें, C1 को भी चेंज करना है, C3 को भी चेंज करना है। C1 को चेंज करते समय इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो C1 की जगह पे आएगा 1 माइनस 2 इंटू C2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, यहां पे -1 आएगा, -1 इंटू -2 +2 और ये है 1 प्लस 2 ये 3 हो जाएगा। समझ में आता है कि देखिए C1 माइनस 2C2, C1 के जगह पे ये एलिमेंट रखेंगे और C2 के जगह पे ये वाला एलिमेंट रखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सही है, ये दोनों को यहां पर रख दिया और ऑपरेशन किया, एडिशन किया, हो गया 3। समझ में आया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, C1 के जगह पे 2 और C2 के जगह पे 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 2, ये होगा 0। समझ में आ रहा है कि आपको। फिर उसके बाद 3 C1 की जगह पे आएगा 3 माइनस 2 इंटू ये है 2 माइनस 2 इंटू 2 यानी -4, 3 माइनस 4 यहां पे आएगा -1। समझे क्या, ये हो गया -1। फिर ये -1 1 2 एज इट इज। अब इसको 0 बनाएंगे, C3 पर ऑपरेशन करना है, C3 चेंजेस बाय ऑपरेशन C3 माइनस 3 इंटू C2। अब देखिए इसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 2 5, यहां पे आएगा 5। C3 की जगह पे रखा 2 और C2 की जगह पे -1, 2 माइनस 3 इंटू -1, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5। C3 की जगह पे रखेंगे 3 और C2 के जगह पे 1, 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस 3 इट बिकम्स 0। C3 के जगह पे 4 माइनस 3 इंटू 2 यानी 4 माइनस 6, ये होगा -2। समझ में आ रहा है आपको। अब इसके साथ ही आपको यहां पे और यहां पे 0 बनाना है। आप ऑपरेशन जो आपको पता है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने समझो C1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे -2 आएगा, यहां पे -2 है तो इसको हम और इसको इस -2 की वजह से 0 बना सकते हैं। तो हम C1 को चेंज करते हैं, C1 चेंजेस बाय ऑपरेशन 2 इंटू C1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स बिकम्स, टारगेट है हमें टू मेक दिस मैट्रिक्स एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। C1 के और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, बाकी उस मैट्रिक्स में क्या चेंज हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। 6 0 -2, ये -1 1 2 एज इट इज रहेगा, ये 5 0 -2। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इस -2 का यूज करके
हम इसको और इसको दोनों को जीरो एक ही स्टेप में बना सकते हैं। जैसे हम C1 को चेंज करेंगे, C1 चेंजेस बाय ऑपरेशन, C1 प्लस C1 माइनस C3, C1 में से C3 को माइनस करो तो ये -2 और ये +2 जीरो हो जाएगा। और इसको जीरो बनाने के लिए इसका यूज करना है, तो एंड C2 चेंजेस बाय ऑपरेशन, C2 में चेंज करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है देखिए, ये 2 है, ये -2 है, तो C2 में चेंज करेंगे हम, C2 चेंजेस बाय ऑपरेशन C2 प्लस C3, C2 और C3 के एडिशन करिए सिर्फ, 2 - 2 ये जीरो बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये क्या बन जाता है देखिए, दिस मैट्रिक्स बिकम्स C1 चेंज होगा, C1 में से C3 माइनस करना है, यानी 6 - 5 ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो 0 0 है, 0 - 0 ये तो 0 ही बना, इसमें कुछ चेंज नहीं। -2 + 2 इट बिकम्स 0। फिर ये C2 और C3 के एडिशन करना है, -1 + 5 ये होगा 4, 1 + 0 ये होगा 1, और -2 - 2 ये होगा 0, और ये 5 0 - 2 एज इट इज, 5 0 - 2 एज इट इज। अब देखिए ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स सभी एलिमेंट 0 है, which is said to be upper triangular matrix. Here we can say that which is upper triangular matrix. अब इसमें आपका सिर्फ आंसर सही आना जरूरी है, लेकिन हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है। इस एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, यहां पे 3 0 आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर किसी के ऑपरेशंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन से ये 0 0 0 एलिमेंट आ सकते हैं, इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता। समझ में आ रहा है सबको? इसको नोट कर लो। हम आगे सीखने वाले हैं द स्टेप्स टू कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स हो, उसे यूनिट मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमें सीखना है। उसके स्टेप्स, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या स्टेप्स है और बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या स्टेप्स है, प्लीज नोट डाउन इट। After understanding of the elementary transformations, we are going to study inverse of matrix. और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखने के लिए आपको किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये स्टेप्स याद रहना बहुत जरूरी है। ये क्या स्टेप्स है? These are the steps to convert any 3x3 matrix into identity or unit matrix by using row transformations. तो आज के लेक्चर में आपको इसकी थ्योरी या ये स्टेप्स पूरे लिख के निकालने हैं, उसको समझ लेना है, आपको उसको पढ़ना है, लिख के उसको पढ़ना है। मैं कॉलम के भी स्टेप्स लिख के दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेनेशन में बाद में दूंगा। आज आप इसको सिर्फ नोट कर लीजिए कि क्या स्टेप्स होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को पहले कैसे चेंज करते जाना है। ये स्टार करके दिए हैं, मतलब यानी ये एलिमेंट कुछ भी है, एलिमेंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या एलिमेंट होंगे, लेकिन क्या एलिमेंट होने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट होते जा रहा है, और आखिरी में वो यूनिट मैट्रिक्स कैसे हो रहा है। ये एलिमेंट चेंज करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना है, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने इस स्टेप्स में दिया है। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये नोट कीजिए। बाद में मैं कॉलम के स्टेप्स क्या है वो भी मैं लिख के दूंगा, वो भी नोट कीजिए, फिर उसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो चलो, आफ्टर द रो ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेप्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, दीज आर द स्टेप्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में जो अगर मैट्रिक्स दिया है, आपको उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये स्टेप्स लिख के लेना है। इसको अच्छे से एक आप
इसकी फोटो कॉपी निकालो या स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अच्छे से आपके नोटबुक में लिख के निकालो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.